about what are the skills that are required to become a cabin crew in India. Of course, English speaking and written fluency in English speaking is very must. Your communication should be on point when you are appearing for the cabin crew interview. That's the reason मैं यहाँ पे अभी आपको पहले से ही बता रही हूँ, बिकॉज इफ़ यू हैव टाइम 2-3 महीने का 6 months का आपके पास टाइम है, तो लेडीज़ प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग. Please start preparing for the cabin crew. Even the my male cabin attendants who are watching, future cabin attendants, please work on the communication. Be it a domestic airline, be it international airline. You know, English is a universal language, and the position you are applying a cabin crew, एक जगह पे नहीं होता, एक ऑफिस में आपकी जॉब नहीं है. You know, it's a traveling job, so you will meet 1,000 people in a day. Yes, approximately 1,000 people in a day who will be from different places, who might not know Hindi or who might not know your regional language, but English is a must. So English fluency, English speaking fluency is very important when you are appearing for the cabin crew interview. And I will in my previous video I have always talked about how English is important, how important it is to speak in English in cabin crew interview, because your whole interview process is going to happen in English. So next skill is confidence. cabin crew आपने कहीं भी देखी, अगर आपने फ्लाइट में देखी होगी, मूवीज़ में देखेंगे, they have such a pleasing personality, they are always smiling, and how can I help you sir, they have their pretty voice. So confidence comes from your smile. This is one tip that I'm giving you. Always smile when you're waiting for the cabin crew interview. And second is your dress and makeup changes the game. So always dress to impress. In my previous video, if you have watched my earlier previous videos, I have always talked about dress to impress, and your makeup should be on point. बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे हैं nowadays. आपको एक टिप देती हूँ, जैसे मैंने स्माइल के लिए टिप दी है, there is one more tip that ladies please भूत बन के नहीं जाना है. आपको हमेशा वही गाइडलाइन फॉलो करनी है, वही मेकअप रूल फॉलो करना है जो एयरलाइन अपने कैबिन क्रू के लिए रखता है. आप यू विल गेट द पिक्चर्स इफ यू गूगल इट, यू विल गेट द एयरलाइन विच यू आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. सेम एयरलाइन का आप गूगल पे सर्च करो कि कैबिन क्रू कैसा है, उसका मेकअप कैसा है, देन उसी शेड के लिपस्टिक, उसी टाइप का आईलाइनर, वही आप करके जाइए. थर्ड पॉइंट इज प्रिपरेशन. ओके, सो यू नीड टू प्रिपेयर. किसी भी इंटरव्यू में, अगर आप स्कूल के वाइवा में भी जाते हैं तो आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, राइट? सो प्रिपेयरिंग फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेडीज इट्स नॉट गो एंड गेट द जॉब वाला नहीं है. कैबिन क्रू के इंटरव्यूज एक्चुअली, लेट मी ब्रेक द आइज, इट्स एक्चुअली वेरी टफ. It is tough for the freshers. It is tough because see, in other interview, like the example I gave in Viva, आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर ये होता है. But in cabin crew interview, it's not technical, so they can ask anything. Ask anything in the sense they'll not ask anything technical or related to aviation कि ये एयरक्राफ्ट टाइप क्या होता है, ये क्या होता है, उसमें कितने प्री फ्लाइट चेक बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये सब ट्रेनिंग में होता है. जस्ट टू गिव यू द ग्लिम्स. सो इतना टेक्निकल नहीं होता, बट यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ. सो टेक अ टाइम, टेक 1 month बैक एंड प्रिपेयर, नो अबाउट योर सेल्फ. ये मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि सिट एट होम, गिव 1 hour टू योर सेल्फ एंड जस्ट नो अबाउट योर सेल्फ. नो योर क्वालिटीज, नो वॉट यू लाइक, यू डोंट डिसलाइक, वॉट आर योर स्ट्रेंथ्स, वॉट आर योर वीकनेसेस, एंड प्रिपेयर. योर इंट्रोडक्शन इज द मेन पार्ट. आजकल सारी एयरलाइंस में पर्सनल इंटरव्यू पहला राउंड हो रहा है. सो देयर आर सेवरल राउंड्स इन कैबिन अटेंडेंट इंटरव्यू. कैबिन क्रू के इंटरव्यू कई सारे राउंड्स होते हैं, ठीक है? उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है. एक राउंड क्लियर हुआ, दूसरा राउंड क्लियर हुआ, 2 से 4 राउंड इज़ वेरी नॉर्मल. किसी भी एयरलाइन में हमारे टाइम पे तो 7 राउंड हुआ करते थे, 8 राउंड व्हेन वी यूज्ड टू गिव इंटरव्यू फॉर जेट एयरवेज एंड ऑल. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू इज ऑलवेज रीड अबाउट द एयरलाइन. ऑलवेज रीड अबाउट द एयरलाइन. गूगल कर लो, विकीपीडिया पे जाके एक दिन पहले पता कर लो कि क्या स्लोगन है एयरलाइन का, उसका फ्लीट साइज़ क्या है.
फ्लीट साइज जिनको नहीं पता इज द हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स द एयरलाइन हैज, number of aircrafts the airline has, the number of the aircrafts the airlines own. So always read about the airline. उसका see first and foremost thing is cabin crew interviews conversation basis. अगर आप अच्छे से बात करना जानते हो, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी है, तो आपका इंटरव्यू 90% बहुत अच्छा जाएगा. आपको एक आधा आंसर नहीं भी आता है, ठीक है, बट आपका आंसर यूनिक ज़रूर होना चाहिए. यूनिक तभी होगा जब आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है ना. नेक्स्ट टिप, वाई आई एम कॉलिंग इट अ टिप, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ द वीडियो एट हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंडिया. इससे इसका कोई लेना देना तो नहीं है, बट हाउ टू अपीयर, आपको प्रिपेयर क्या करना है कैबिन क्रू के इंटरव्यू में, ये ज़रूर है. सो इट्स स्मॉल थिंग, इट्स योर इंट्रोडक्शन एज द मेजर प्लेस अ मेजर रोल when you are appearing for the interview, क्योंकि यही आपका फर्स्ट राउंड होता है इन 90% एयरलाइन. दिस इज योर फर्स्ट राउंड, ठीक है. इंट्रोडक्शन तो पता ही होना चाहिए. अगर फर्स्ट राउंड भी नहीं होगा तो आपका लास्ट राउंड में इंट्रोडक्शन की टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तब आपको क्या बोलना है आपको पता होना चाहिए. सो फर्स्ट कम्स योर नेम, देन योर बर्थ प्लेस, योर क्वालिफिकेशन, देन व्हाट आर द क्वालिटीज एंड द हॉबीज यू हैव. अब क्वालिटीज हॉबीज वही होनी चाहिए जो आपकी थोड़ा सा रिलेट करें. जैसे आई हैव अ फ्रेंडली नेचर, आई एम अ इम्पैक्ट, आई लाइक हेल्पिंग अदर्स एंड दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है ना. देन कम्स योर स्ट्रेंथ्स. डू नॉट टेल योर वीकनेसेस until unless you are not asked, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ टिप. And that is all, and why you love aviation and why you wanted to join this airlines and why are you here today. So make a good impression when it comes to introduction. That is all, my lovely future flight attendants. Give your love. It's my new channel and that is all. Thank you so much. Love you. Please subscribe and comment below in case you do not understand anything.